slapped the hell out of Penelope. She's being punched. Previously on Sisters. Zach and I are gonna have a cookout tomorrow, and you guys are all invited. Ooh, Andy, that's an edible. we about to be. Rock? Hey, what you think about us having fun with these two lesbians? David, can you do me a favor? I need you to watch over the sister circle. I need to know that someone's here. Stay back. Not a day goes by when I don't think about you. And even when I try, I still feel you. I do. I feel your warm embrace when it's gray and I'm blue. I still dream. I do. I miss the way you bring the joy out of me. Yeah, and how you touch is so intense, it's so sweet. Yeah, always reminiscing, close my eyes and I can't see you. Time goes by, but you still feel just like summertime. Just like summertime. Tell me if you're quiet to miss the summertime, just like summer. Said it feels like summer. Did you have a good night? Yes. Time was ahead. Gosh, why is it so bright in here? My head. Nasty hangover. Oh. I didn't expect to go so hard. Well, I heard that pancakes can cure this problem. I did. Pancakes will take care of it. You're gonna feel a lot better. Wait. Is this a trick? No sermon about me being too old to have a hangover, and this is why I ain't got no man. You said it. I didn't. Well, I don't regret anything. It's the most fun I've had in a long time. Well, you know what? I am glad you had fun with your friends, but get up because you cannot eat cold pancakes. Rich? What are you doing here? Just give me a second before you go off. I helped you get home last night. Nothing happened between us. You're Now let's be clear on that. okay, so what were you doing there? When Zach told me you were throwing up, I wanted to make sure you were good. When I got there, it was clear you weren't. It must have been those polar bear shots Maurice had me taking.
I mean, whatever it was that had you thrown up outside the club, and you can barely walk. Yeah, but I'm sure you know one of the girls could have took me home, Rich. That's not what you said last night. Your exact words were, and I quote, "Rich, I miss you. Take me home, please." No, whether you were in your right mind or not, I just wanted to make sure you were good. But sure, your girl Fatima did charge me up. She said that if I tried anything with you, my face would be in a baseball bat. But you know I would never do that. I just carried you in here, I put you to bed, and I slept on the couch. Thank you. You know, you didn't have to do that. I was not. Alright, well, I'm gonna go ahead and jet out. Somebody's supposed to meet me at the gym. So. Okay. Rich, do you want a cup of coffee, or? I know you have to meet Tony. No pressure, no pressure. It's up to you. You know, no pressure, actually. I mean, I got 15 minutes to spare, so I'm not. How'd you get here? I brought you home. Remember? Yeah, but why are you still in here, in bed? I was tired after we, you know. So I didn't dream that. You remember throwing me on the bed last night? I don't lie, I was a little scared. Damn it. Damn. I had a strawberry. I need some, like, water. I got some for that. Listen, Just come back to bed. We can cuddle. Or go for round, 6. oh, 6. You're not in jail. Mommy, you know these are my favorite. I haven't had these in so long, and they're still delicious and nutritious. Well, I would teach you how to cook them, but from the looks of the pots in your kitchen, you don't cook. I cook. Special occasions. Air fryer doesn't count. Anyway, how was your night? I was worried about you. It went well. You know, I felt like myself again. Really? Yeah. And you went to Bible study with Amara? What? Yeah. Yeah? Bible study was enlightening. Oh, my night was enlightening too. How so? I let my hair down, and I had so much fun. I felt free for the first time in a long time. Yeah, that's a great way of healing, isn't it? Yeah. You know what I realized? Life is too short. I can't consume it with work and drama. You know, I gotta live my life. I gotta live life with no regrets, like carbs. My God. Mommy. You did your big one. Andy, there's something I want to tell you. Oh, what is it? It's the real reason why I'm here. Mom, I know why you're here. I mean, nosy and all up in my business. There ain't no secret. Okay, well, other than being nosy, there is another reason. What is it? Andy, Yes? release the pancakes.
Okay. I'll be back. I have been having a really difficult time lately, and I came here to tell you that I've been diagnosed with stage 2 breast cancer. But I'm fine. You know, I probably got the best oncologist in Florida. Wait, what? I'm confused. Did they catch it in time? Why are you just now telling me this? Are you okay? Yeah, I am fine. I was diagnosed almost 2 months ago, but Why would you keep this from me? well, because you were so busy, and it wasn't a high priority, so I didn't tell you. Yes, it is, Mom. Look, I know we have our differences, but I love you. I know, too. So have you got rid of it? Oh, it's a little bit too early to tell, but the good part is it hasn't spread. So that's why you almost fainted yesterday? That was stupid. I could have been preventative. I would have taken my meds. Mommy, bothers you. They ain't called me home yet. Well, I think you should come to Atlanta for treatment. I have the best doctors on call. I'll get a referral. Andy, The no. top doctors in the city. Listen to me. I'm fine. I just wanted to tell you. Then I'm coming to Florida. That's perfect. No, I love Florida. Listen to me. No, you're not. You're going to stay here and be the successful lawyer that you are. Mommy, what can I do? Just pray. That's all that we can do. Trust me, God's got me. Will you pray with me? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. In heaven. Here you go. Thanks. You ain't put nothing in this, did you? No. So, how's the hangover? I just took a couple ibuprofen. So I'm hoping that this coffee will do the trick. So you've been hanging out with Zach or getting close with him? Yeah, that's my guy. Yeah, I like him. He cool. So what I want to do... I'm sorry, but No, go ahead. You go. no, I'm all ears. Well, I was just gonna say that I'll fall back. I know you truly hate my guts after everything I did. I mean, sure, I did. I mean, I can't just expect you to forgive me, then take me back. I mean, let's be real. I mean, we had our issues way before all the Penelope drama. Yeah, I know. But I mean, Please, just give me a second. Just listen. Please. I know I've been coming off strong. Hell, thirsty even. I guess that was just my way of trying to fight for what we had. But I understand that you take your boundaries very seriously. And I've crossed them. So I'll fall back. You ain't gotta worry about me popping up at your job or any of your favorite spots. I mean, I just hope one day we can be friends, maybe. Shit. So, I just totally... I gotta go. So, I guess I'll catch you at the cookout later. cookout? Zach
Zach and Fatima having a cookout. Right. Yeah, I forgot. Thank you, sis. No poison. Rich? No, sir. Thank you. Was nothing. I'll catch you later then. Chill, Danny. Let's just go back to bed. No, because if I get back in that bed with you, I'm going to get pregnant. I know it. That's my God. I don't mind. We used a condom, right? Yeah, you were very adamant about that. I don't believe I'm about to say this, but I really think you should leave. Please? Thank you. Sure about that? Shall I rebuke you? Okay? Rebuke you, Satan. Now get. Come here, girl. Now Take care of the hangover. Now you get. You hear? Wait, Tony. Who the hell is this? This is my friend Marcus. He's an officer of the peace. Friend. Really? Yeah. Already, Danny? And was fine caring. Don't worry about me, bro. Hey, man, nobody's talking to you, bitch. Don't talk to me. Yo, I got your bitch. I don't think you should swing bitches. Hey! Tony! No, stop! You're taking this shit! Jimmy, stop us from now. It's a police officer. Can you take your shit? This ain't worth my time. Please just go. Yeah, man, get the f out of here. You know what's fun? Yeah, you're getting the bill. See why you kicked his ass out. Talk, Tony. Don't say my name. Tony, Don't say my name. I really need you to listen to me. What's there to say? You cheated on me. I know, but let me explain. What's there to say? You had another man in here. That fast? Tony, I'm sorry. Don't say my name. Would you please just let me explain? There's nothing to explain. What you did, that's unforgivable. I know, but can we talk? No, I ain't nothing to say to you. Tony, wait. Don't call my phone. Ever. Hey, look, I can't talk right now. Yeah, I'm here. Now, what's going on? No, today is not the day to tell him. All right, it's bad. No, it's bad timing. Zach is my only son. Right now, as his father, I want to do this the right way. Yes, he deserves to know, but when the time is right. Now, once again, let me handle it. I gotta go. So you gonna miss this place? No, not at all. Not even a little bit? I mean, wasn't this your first apartment? Yeah, it was. Maybe it'll be better luck for the next tenant. I mean, it wasn't that bad, was it? You're right. It was like a stronger word for bad, like a... Come in. Got a
Mama. It is. Hey, Mama. Hey, kids. How you doing? I am good. Hey, come on in. Come on in. Thank you. Look at this. Yeah, we almost got it all. Why are you fatigued, though, Mom? Well, I came to give you what I think is some really good news. Okay, what's that? I have been reassigned as a VA consultant at Lewis McCord AFB. Where's that? It's about 45 minutes south of Seattle. Are you serious? I had a heart attack. Oh, that's so exciting. That's amazing. Congratulations. Thank you so much. I was hoping it'd be good news. Wait a minute. Did you make them transfer you? Well, you don't really make the Marines do anything, but let's just say I made a suggestion on the location. Okay. Well, Yeah, well, I mean, if you're gonna be that close, sounds like we might have a babysitter. Sometimes. let's just say I don't mind being a part of that village, but keep in mind, I do have a life. I will still be camping. Of course, actually. Okay, Mama, look. Here, this is everything that you need inside this folder for the movers. Okay, got They'll it. be here tomorrow morning, and everything that is in a fragile box is labeled. So just make sure that they handle with care, okay? Okay, I got it. Thank you. Oh, gosh. All right. Well, I think I'm gonna get Faith down to the car. Okay, you got everything? Yeah, and we'll be ready when you are. Okay. Okay. See you down there. Good to see you. And, I'll see you next week. Maybe not next week. Oh, Honey, I am so proud of you. oh thanks, Lily. Man, thank you. Can you just give me a minute? Sure. Okay. I'll see you downstairs. All right. Careful. Dylan, why the f are you acting like I have you on the outside of a Black Panther meeting? Straighten up. This is my first invite to the cookout. Let me clear something up for you. You were not invited to the cookout. You were invited to this cookout, and you definitely don't have a black card. So if you'll just be quiet for me. Who is a black card? We'll talk about that later, okay? Now we want to go inside. I'm hungry. What's up, business partner? And your new boo that's very vanilla. Oh, shut up, Top Knot. There's a blank wiener on the inside with my name on it. Let's go. Well, if you be nice, I'll make sure you get a little mayo to dip it in. Go on in there, Nicki Minaj. Does this look good? You know about that now. That's me. That's me. Who invited the white boy? Oh, I don't know, man. When we play them spades, why don't we pair him up with Rich? I'm talking about. What's up, baby? Fatima, how are you? I've heard so many wonderful things about you. Yes. Yeah, and congratulations with the little one. Thank you. Yeah. Yeah, so is Mom. Well, yeah, I do. I mean, we all ran in the same circles. Yeah. You know? Yeah, and you've known about Zach for a while now. I mean, how could you not, right? Well, we don't even talk about the past. Y'all know my family couldn't keep me down. I don't sit. Mr. Keith, do me a favor. Can you run inside and grab me a beer? I got you, son. Appreciate you. All right. Yes. Mr. Keys. What is going on with you? How did you say this when you got here? At the gym, why? I don't trust Zach. Something is off. Are you serious? You want to do this now? Zach, Fatima, please, for the love of God, can we not do this today? Look at it's beautiful outside. I'm feeling refreshed. My burgers are award-winning. yeah, thanks to my seasoning. I'm gonna let you have that.
Okay, but please, can we talk about your suspicions later? I just want to feel involved. Zach, it's No. I don't want you, please. No drama, no beef, no assumptions, no gossip. Alright, look at the gossip. fine. Look who it is. I hope y'all bought your appetites. Thanks for inviting us, y'all. Yeah. Thanks for coming. Look at We didn't have a lot of time, but we want to make sure we saw you before we left. Where's the girls at? hungover girl. I'm sure they're on their way. You know. Okay, well, I need a change. You have a room I can use? Yes, absolutely. I'll take this. Thank you. I appreciate that. Of course. Monochromatic look nice. We do what we can, you know. What was I thinking? You've reached Tony Royal. I can't get to the phone right now. Hey, girl. Hey, are you at Zach and Fatima's yet? Right at the door. Okay. I wanted to tell you something before I get there. What's up? I think I want Rich back. I know it sounds crazy, but if I'm being honest, my feelings never really left. I was so angry with him. And people cheat. Not saying that's a reasonable excuse, but technically, Rich and I weren't together. Just hate that I saw him in the act. That image of him with Penelope. Hey, I can't do this right now, okay? Danny. Hey, girl. Sorry I didn't bring anything. Oh, girl, it's fine. We got plenty of food and drinks. Yeah, I just want to see them off and then I'm gonna head out. I'm not gonna stay long. Is everything okay? No, but What's going on, Danny? up with Tony. Oh, this didn't have anything to do with the cop from last night, did it? We tried to stop you from getting in the car with him. No, I believe you. Yeah, and he told us to suck you. Yeah, I also believe that as well. Yeah. Wait, Danny, he didn't take advantage of you, did he? I mean, I was way too drunk, but I knew what I was doing. Don't be so hard on yourself. We all make mistakes, okay? This is huge. Cheated on my boyfriend. I got caught. But weren't you guys kind of in a tough spot anyway? Yeah, but that was probably fixable. What I did. Okay, so All right, listen. Just let it blow over, okay? And you two can talk out like adults. that man is not gonna talk to me. Listen, I know it's easier said than done, but just try to have a good time, okay? We can deal with this later. Thank you. Yeah, I don't want anyone talking. Danny, I got you. Thank you. Hey, come get some of these ribs. Yes, girl. Okay, girl. It's so good. I see you. Oh, you can get. Oh, definitely get some. Hey, Paige. Okay, hi, don't hate me that I can't find my keys to the vault. What? I couldn't find them anywhere and they're not in my car. Do you think you left them at home? I think so. Oh, I'm so sorry. Are there customers there, Paige? Like 10. I'm so sorry. I tried calling Maurice, but he told me to find the key in hell. Okay. I'm on my way. Oh my gosh, thank you so much. Paige, now I'm gonna be late to this cookout.
about your working relationship. I was so glad to hear that. Yes, ma'am, we did. And there is plenty of food if you're hungry. Good afternoon. Hi. Oh, funny seeing you here. Well, I would say that it's a pleasant surprise. That it is. That it is. Nice to see you all. Wow. All right. Mommy, where are you going? Who is this man? Girl, one of Zach's new friends that I don't trust. Well, if you don't trust him, I don't trust him either. I wonder how they know each other. Let me see. People must talk, Andy. Come on, I want to hear about your night. Where's Sabrina, by the way? She's on her way, and I'm not talking about my night. On my morning. Okay. Man. Andy, you want to tell me about your night? Oh, yeah. I had a hangover. It was insane. Girl, I knew you were doing. I saw you twerking on tables. Oh, yeah. Did you enjoy my show? Honey, it was a show. Yes. So, how long you keep me waiting, Playboy? What you talking about last night? I'm talking about last month. Yes, I'm talking about last night, bro. Come on. I mean, shit, I took her home. That's it. Did y'all talk? Yeah. You know, I told her I was gonna fall back and I ain't gonna press her no more. Okay, so what she said? Shit, not really. She just, but I figured she might want to talk about it more when she gets here. Don't do that. Don't say nothing. Let us sit in there for a little bit. Let it stew. And just chill. You know what I'm saying? Yeah, you're right. Yeah, where your bathroom at? It's upstairs. Bet. Hey. Yo, don't blow my shit up neither. You look like you eat some shit too much. You burning the ribs. Hey, what's up? You still don't like me, huh? No. Look, Danny, you ain't gotta like me, but I do got a question I need to ask you. I'll do Q&As and sorry to the suggestion box. I just want to know, can I come by your place later to pick up Tony's gym bag? He left it at your place. I just want to swing by later and grab it. Okay, this gym bag, huh? Yeah, that's why he came by this morning. So you know about it? इसको बेलन से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह मैं हाथ से दबा के इसको पतला करके एक सा कर लेती हूँ। अब इसके बीच में हम रखेंगे थोड़ी सी फिलिंग जो हमने बना के रखी थी। साथ ही ऊपर से रखेंगे इसमें चीज़, जैसे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब थोड़ी सी फिलिंग इसके ऊपर रख देते हैं और तो अच्छे से हमने फिलिंग कर दी जितनी इसमें आराम से आ जाए। अब इसके किनारों पे हम लगाएंगे हल्का हल्का पानी। देखिए इस तरह हाथ को डिप करिए पानी में और चारों तरफ इसके लगा दीजिए, जिससे कि ये सील बहुत अच्छे से हो जाता है। जब हम पानी लगा के इसको सील करते हैं तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। आप बिना पानी के भी इसको चिपका सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं है। तो देखिए इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं उनको हाथ से दबाते हुए हम सील कर लेंगे। देखिए कितने आराम से ये अच्छे से सेट हो गया, चारों ओर से कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह हम चारों ओर से इसको पैक कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाएगा, पैक होकर बिल्कुल। तो इसी तरह हम दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो हमने बेल के रखा था, एक साइड से उठा कर थोड़ा सा मोड़ देंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह उसके सामने दूसरी तरफ से भी मोड़ देंगे। इसी तरह ऊपर नीचे से भी हम मोड़ देंगे। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमने इसका मोड़ दिया है। देखिए अब इसको पलट लेंगे और किनारों को हल्का सा दबाते हुए पतले कर लेंगे। जो थोड़े मोटे हिस्से लग रहे हैं उनको दबा के थोड़ा पतला कर लेंगे। और इसमें रखेंगे चीज़, फिर फिलिंग और फिर ऊपर से इसके चीज़ डाल देंगे और कॉर्नर पे लगाएंगे हल्का सा पानी चारों तरफ इसके किनारों पे इस तरह उंगली से, और इसको अच्छे से चिपका देंगे। देखिए कॉर्नर, दोनों तरफ से कॉर्नर उठा के आपस में चिपका देंगे इस तरह से, और फिर दूसरी साइड के कॉर्नर्स को उठा के चिपका देंगे। देखिए
एक पैकेट की तरह बन जाता है। बहुत ही एकदम यूनिक डिज़ाइन बनकर तैयार होता है, देखिए। और इसके जो साइड का पोर्शन खुला हुआ है उसको इस तरह हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाता है, देखिए। तो बनकर तैयार हो गया हमारा नाश्ता। इसी तरह हम बाकियों को भी बना लेंगे। बेल कर चारों किनारे इसके फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से, देखिए इस तरह, और हाथ से दबाते हुए सेट कर लेंगे। और बीच में रखेंगे फिलिंग अच्छी तरह से, और पानी लगा के इसको हम चिपका देंगे। देखिए चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब 2 कॉर्नर को हिसाब पकड़ के हम चिपका देते हैं, फिर दूसरी साइड के दोनों कॉर्नर को पकड़ के चिपका देंगे, और किनारी जो है उसको दबाते हुए सील कर देंगे, देखिए इस तरह से। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से हमारा जो है ये पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं नाश्ते के, देखिए। अब पैकेट तो बन गए हैं, अब थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं। तो इसके बीच में मैंने थोड़ा सा लगाया पानी, हल्का सा हाथ पे लेके, और इसके ऊपर रख दिए थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। इसे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से पानी लगा के जब हम काली मिर्च लगाते हैं तो अच्छे से वो चिपक जाती है और बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो आप इसकी जगह तिल भी लगा सकते हैं या कलौंजी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, जिससे देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह सारे नाश्ते को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, सारा पैक कर लिया है। तो अब इसको हम सेक लेते हैं। अब कैसे सेकना है इसको, हल्का सा पानी लगाना है एक साइड और तवे पर से रख देना है। देखिए जैसे हम नान को रखते हैं तवे पे सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक साइड हल्का सा पानी का हाथ लगा के तवे पे रख देना है। और आप देखेंगे 1 मिनट में ये एकदम फूलने लगते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए, आप देख सकते हैं। और पानी लगाने की वजह से ये तवे पे बहुत अच्छी तरह चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी छूटते नहीं है। आप देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, एकदम गुब्बारे की तरह। तो इसको हम सिकने देंगे, 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से सिकने देते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। जब ये नीचे से थोड़े से कड़क हो जाएं तो इस तरह इसको तवे को हम उल्टा करके गैस पे से सेक लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से सेकना है। जहाँ से थोड़ा कच्चा दिखे आप धीरे धीरे पलट के इसको देख लीजिए, जहाँ से आपको कच्चा लगे उस हिस्से को गैस के ऊपर रख के आराम से इसको सेक लेंगे। देखिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। देखिए ऊपर से भी हमने इसको सेक लिया है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सिक जाता है, और दोनों ही तरफ से बहुत ही गोल्डन कलर आ जाता है, क्योंकि नीचे से तवे से सिक जाता है और ऊपर से हम इसे गैस की आग से सेक लेते हैं। तो जैसे नान बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ऊपर से हल्का सा मैं बटर लगा देती हूँ। तो देखिए सिक गए हमारे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये सिकाए दोनों ही तरफ से। तो इसी तरह हम सारे नाश्ते को सेक लेंगे। ऑयल लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। आप चाहे तो बिल्कुल भी बटर ना लगाएं, बिना बटर के भी इसको बना सकते हैं। देखिए इसको नीचे से सेकने देंगे पहले हम एक तरफ से अच्छे से, थोड़ा सा घुमा घुमा के सेकना है हमें। जिस तरफ आपको कच्चा लग रहा हो उस तरफ थोड़ा सा तवे को घुमा दीजिए। मैंने बिल्कुल नॉर्मल आयरन का तवा लिया है, नॉन स्टिक तवा नहीं है ये। और नॉन स्टिक तवे पे ये बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उस पर चिपकेंगे नहीं। देखिए एक तरफ से सिक गए जब, तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। देखिए इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे देख लीजिए कहाँ से सिका है कहाँ से नहीं सिका है, और इस तरह गैस पे इसको सेक लेंगे। बहुत ही झटपट से बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता हमारा बन जाता है। देखिए
जहाँ से आपको लगे कि यहाँ नहीं सिका है उस पोर्शन को हम गैस के ऊपर करके सेक लेते हैं। धीरे धीरे से इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगता है। तो अब आप इसको बहुत ही कम गैस करके इसको सेकिएगा तो बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं और बहुत ही फूले फूले से हमारे ये नाश्ते जो बनकर तैयार होते हैं। तो बस आप इसको पलट के देख लीजिए कहाँ से सिका है कहाँ से नहीं सिका है। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इस तरह हमने बेकिंग सोडा डाला है जिसकी वजह से बहुत ही फ्लपी सा हमारा ये नाश्ता बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। दोनों ही तरफ से सिक जाते हैं। देखिए हल्का सा इसको प्रेस करके आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से किसी चमचे की मदद से। बहुत ही यूनिक और एकदम नए डिज़ाइन का नाश्ता बनकर तैयार होता है। देखिए आपको दिखा देती हूँ दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है। जो लोग ऑयल फ्री खाना चाहते हैं उनके लिए एकदम बेस्ट नाश्ता है। देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है मेरे नाश्ते में। तो आप ज़रूर से इस नाश्ते को एक बार ट्राई करिएगा। देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना चीज़ी और सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप। और हेल्दी तो है ही क्योंकि है इसमें गेहूं का आटा और सब्जियां, दोनों ही हेल्दी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस नाश्ते को ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइए। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट विद मिनी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। रोटी वाले तवे पर अगर आप इस तरह से कुछ इस नाश्ते को बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता सब खाना भूल जाएंगे। इसी को खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और देखने में एकदम यूनिक नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो किसी स्टार्टर के रूप में बनाना हो या किसी किटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में इसको ज़रूर से ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये। और सबसे ख़ास बात, इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। माइक्रोवेव में और डीप फ्राई करके तो आपने बहुत बार नाश्ते बनाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से तवे पर बहुत ही कम तेल में बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक नाश्ता जो आज से पहले आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा। और इसमें भरी हुई हैं बहुत सारी वेजीज। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। तो वीडियो तो आज का आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो टेस्ट विद मिनी के फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो चलिए बनाते हैं आज के नाश्ते को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 चम्मच घी। इसकी जगह आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच दही। आप दही के बिना भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, बट दही डाल के बनाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। साथ में डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा और थोड़ा सा लाइट सा हो जाता है, क्रीमी फॉर्म में आ जाते हैं सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं दही के साथ। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। मात्रा से मैंने 100 ग्राम आटा लिया है और 50 ग्राम मैदा, मतलब जितना गेहूं का आटा लिया है उसकी आधी मैदा ली है। आप इसको पूरा गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इस तरह से हाथ से क्रश करके इसको डालेंगे जिससे कि इसकी महक बहुत अच्छी आती है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो
इसको हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे डालने से हमारा नाश्ता एकदम फूला फूला फ्लपी सा स्पंजी सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। जैसे कि तंदूरी नान वगैरह हम बनाते हैं, उसी के जैसा इसमें स्वाद आता है। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, आप तो इनो का आधा पैकेट डाल सकते हैं इसमें, उससे भी इसी तरह का नाश्ता बनेगा, बिल्कुल हमारा फ्लपी सा। तो सारी चीज़ों को डालकर हाथों से मिक्स कर लेंगे जब तक कि घी और दही अच्छे से आटे में मेल्ट ना हो जाए सारा। देखिए इस तरह से, देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। एकदम नॉर्मल सा डो लगाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, जैसा हम रोटी के आटे का डो लगाते हैं, बस वैसा सही हमें ऐसा डो लगा लेना है। इसको आप खाली गेहूं के आटे से बनाएंगे अगर पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहते हैं, बस मैदा डालने से थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है हमारे आटे में और थोड़ा देखने में बहुत एकदम स्मूथ चिकना सा बनता है हमारा नाश्ता। तो देखिए इसका हम डो लगा लेते हैं। अब देख सकते हैं डो एकदम रोटी की तरह लगाया है, बिल्कुल टाइट नहीं है हमारा डो। और डो लगा के इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे, लगभग 15 मिनट या ज़्यादा देर भी आप रख सकते हैं, जिससे कि अच्छे से ये आटा जो है सेट हो जाता है। अगर हम आटे को मार के रख देते हैं तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, फिर उसको जब बेलते हैं तो बहुत अच्छे से बनते हैं हमारी रोटी वगैरह। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने लिए कुछ वेजीज़, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, साथ ही लिए हैं थोड़े से कॉर्न। आप अपनी मनपसंद वेजीज़ ले सकते हैं, सभी को बारीक चॉप कर लिया है। इसकी जगह आपको जो भी वेजीज़ पसंद हो इसमें डाल लीजिए, या पनीर भी डाल सकते हैं, या आप आलू की फिलिंग भी तैयार कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे फ्राई। तो पैन में डाला है 1 चम्मच तेल। अब इसमें डाल दिए हैं हमने प्याज और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन रही है। तो अब इसमें हम बाकी की सब्जियां भी डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च जो भी हमने काट के रखी है, सारी सब्जियों को डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कॉर्न भी डाल देंगे, जो हमने निकाले थे कॉर्न अच्छे से, उनको साफ़ करके धोकर। और साथ में इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। देखिए बस हल्का सा इसका हमें भून लेना है 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इसमें अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले। यहाँ पे मैंने डाली है 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तब इसको थोड़ी देर चला के हम भून लेते हैं अच्छे से, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है, तो इसे आप तेज़ गैस पे भूनिए। देखिए एकदम ड्राई सी हो गई है हमारी सब्जियां। बस इतना कुक करना है कि 50% हमारी सब्ज़ी गल जाए, क्योंकि इसे हम अभी और भी पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो हमारी फिलिंग तो बनकर हो गई है तैयार। इसको ठंडा होने देते हैं जब तक। अब जो आटा रखा था उसको सरफेस पे निकाल के थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ी देर रब करके उसको देखिए। और इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे, जैसे रोटी के लिए तोड़ते हैं। तो रोटी से थोड़े छोटे बनाने हमें।
पूड़ी के जैसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम सारे इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो हमें रोटी से थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, वैसे छोटा बड़ा, और एकदम स्मूथ कर लेंगे उसे हाथों से। तो सभी पेड़ों को हम इस तरह से एकदम चिकना कर लेंगे। चिकना करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जब इसकी रोटी बेलेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत एकदम एक सी रोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगर आप रोटी बनाना जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इसे बनाने में। तो देखिए इस तरह सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए। तो सबको हटा लेते हैं और एक दो को हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइट आटा नहीं है, तो इसको हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। आप चाहें तो ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूखा आटा लगा के बेल रही हूँ, जैसे कि हम रोटियों को बेलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसे बेलेंगे। थोड़े बड़े साइज़ में इसको बेल लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से एकदम एक सा हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। तो इस तरह से हम इसकी रोटी जैसा बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह बाकी को भी बेल लेते हैं। आप इस तरह सभी को एक साथ बेल कर रख लीजिए, जिससे कि फिल करने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को बेल लिया है। एकदम एक से हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है दोनों। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड से हल्का सा उठाकर मोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। दूसरी साइड से भी इसी तरह मोड़ देंगे। नीचे के हिस्से से भी थोड़ा सा आधा इंच के बराबर हमें उठाकर मोड़ देना है, देखिए। और हाथ से हल्का सा दबा के प्रेस कर देंगे, देखिए। तो हमने चारों तरफ से लगभग आधा इंच के करीब मोड़ दिया है। अब इसको हम पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे। और जो किनारे थोड़े मोटे मोटे से लग रहे हैं तो उनको हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा पतला कर लीजिए, देखिए इस तरह से। हमने मोड़ा है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आप उसको बेलन से भी कर सकते हैं। रोटी वाले तवे पर अगर आप इस तरह से कुछ इस नाश्ते को बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता सब खाना भूल जाएंगे, इसी को खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और देखने में एकदम यूनिक नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो किसी स्टार्टर के रूप में बनाना हो या किसी किटी पार्टी में या बर्थडे पार्टी में, इसको ज़रूर से ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये। और सबसे ख़ास बात, इसको हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। माइक्रोवेव में और डीप फ्राई करके तो आपने बहुत बार नाश्ते बनाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से तवे पर, बहुत ही कम तेल में, बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक नाश्ता, जो आज से पहले आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा। और इसमें भरी हुई हैं बहुत सारी वेजीज, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। तो वीडियो तो आज का आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो टेस्ट विद मिनी के फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तो चलिए बनाते हैं आज के नाश्ते को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 चम्मच घी। इसकी जगह आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच दही। आप दही के बिना भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, बट दही डाल के बनाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। साथ में डालेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे, देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, और थोड़ा सा लाइट सा हो जाता है, क्रीमी फॉर्म में आ जाते हैं सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे, देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं दही के साथ। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। मात्रा से मैंने 100 ग्राम आटा लिया है और 50 ग्राम मैदा, मतलब जितना गेहूं का आटा लिया है उसकी आधी मैदा ली है। आप इसको पूरा गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इस तरह से हाथ से क्रश करके इसको डालेंगे, जिससे कि इसकी महक बहुत अच्छी आती है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो
इसको हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे डालने से हमारा नाश्ता एकदम फूला फूला फ्लपी सा स्पंजी सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। जैसे कि तंदूरी नान वगैरह हम बनाते हैं, उसी के जैसा इसमें स्वाद आता है। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, आप तो इनो का आधा पैकेट डाल सकते हैं इसमें, उससे भी इसी तरह का नाश्ता बनेगा, बिल्कुल हमारा फ्लपी सा। तो सारी चीज़ों को डालकर हाथों से मिक्स कर लेंगे जब तक कि घी और दही अच्छे से आटे में मेल्ट ना हो जाए सारा। देखिए इस तरह से, देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे। एकदम नॉर्मल सा डो लगाना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, जैसा हम रोटी के आटे का डो लगाते हैं, बस वैसा सही हमें ऐसा डो लगा लेना है। इसको आप खाली गेहूं के आटे से बनाएंगे अगर पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहते हैं, बस मैदा डालने से थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है हमारे आटे में और थोड़ा देखने में बहुत एकदम स्मूथ चिकना सा बनता है हमारा नाश्ता। तो देखिए इसका हम डो लगा लेते हैं। अब देख सकते हैं डो एकदम रोटी की तरह लगाया है, बिल्कुल टाइट नहीं है हमारा डो। और डो लगा के इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे, लगभग 15 मिनट या ज़्यादा देर भी आप रख सकते हैं, जिससे कि अच्छे से ये आटा जो है सेट हो जाता है। अगर हम आटे को मार के रख देते हैं तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, फिर उसको जब बेलते हैं तो बहुत अच्छे से बनते हैं हमारी रोटी वगैरह। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने लिए कुछ वेजीज़, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, साथ ही लिए हैं थोड़े से कॉर्न। आप अपनी मनपसंद वेजीज़ ले सकते हैं, सभी को बारीक चॉप कर लिया है। इसकी जगह आपको जो भी वेजीज़ पसंद हो इसमें डाल लीजिए, या पनीर भी डाल सकते हैं, या आप आलू की फिलिंग भी तैयार कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे फ्राई। तो पैन में डाला है 1 चम्मच तेल। अब इसमें डाल दिया है हमने प्याज और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, बस 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन रही है। तो अब इसमें हम बाकी की सब्जियां भी डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च जो भी हमने काट के रखी है, सारी सब्जियों को डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कॉर्न भी डाल देंगे, जो हमने निकाले थे कॉर्न अच्छे से, उनको साफ़ करके धोकर। और साथ में इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। देखिए बस हल्का सा इसका हमें भून लेना है 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इसमें अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले। यहाँ पे मैंने डाली है 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तब इसको थोड़ी देर चला के हम भून लेते हैं अच्छे से, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है, तो इसे आप तेज़ गैस पे भूनिए। देखिए एकदम ड्राई सी हो गई है हमारी सब्जियां। बस इतना कुक करना है कि 50% हमारी सब्ज़ी गल जाए, क्योंकि इसे हम अभी और भी पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो हमारी फिलिंग तो बनकर हो गई है तैयार। इसको ठंडा होने देते हैं जब तक। अब जो आटा रखा था उसको सरफेस पे निकाल के थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ी देर रब करके उसको देखिए। और इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे, जैसे रोटी के लिए तोड़ते हैं। तो रोटी से थोड़े छोटे बनाने हमें।
पूड़ी की जैसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम सारे इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो हमें रोटी से थोड़े छोटे साइज़ के बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, वैसे छोटा बड़ा, और एकदम स्मूथ कर लेंगे उसे हाथों से। तो सभी पेड़ों को हम इस तरह से एकदम चिकना कर लेंगे। चिकना करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जब इसकी रोटी बेलेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत एकदम एक सी रोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगर आप रोटी बनाना जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को बना सकते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इसे बनाने में। तो देखिए इस तरह सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए। तो सबको हटा लेते हैं और एक दो को हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा टाइट आटा नहीं है, तो इसको हम सूखा आटा लगाकर बेलेंगे। आप चाहें तो ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सूखा आटा लगा के बेल रही हूँ, जैसे कि हम रोटियों को बेलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसे बेलेंगे। थोड़े बड़े साइज़ में इसको बेल लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से एकदम एक सा हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। तो इस तरह से हम इसकी रोटी जैसा बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह बाकी को भी बेल लेते हैं। आप इस तरह सभी को एक साथ बेल कर रख लीजिए, जिससे कि फिल करने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को बेल लिया है। एकदम एक से हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है दोनों। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड से हल्का सा उठाकर मोड़ देंगे, देखिए इस तरह से। दूसरी साइड से भी इसी तरह मोड़ देंगे। नीचे के हिस्से से भी थोड़ा सा आधा इंच के बराबर हमें उठाकर मोड़ देना है, देखिए। और हाथ से हल्का सा दबा के प्रेस कर देंगे, देखिए। तो हमने चारों तरफ से लगभग आधा इंच के करीब मोड़ दिया है। अब इसको हम पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे। और जो किनारे थोड़े मोटे मोटे से लग रहे हैं तो उनको हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा पतला कर लीजिए, देखिए इस तरह से। हमने मोड़ा है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आप उसको बेलन से भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह मैं हाथ से दबा के इसको पतला करके एक सा कर लेती हूँ। अब इसके बीच में हम रखेंगे थोड़ी सी फिलिंग जो हमने बना के रखी थी। साथ ही ऊपर से रखेंगे इसमें चीज़, जैसे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब थोड़ी सी फिलिंग इसके ऊपर रख देते हैं। और तो अच्छे से हमने फिलिंग कर दी जितनी इसमें आराम से आ जाए। अब इसके किनारों पे हम लगाएंगे हल्का हल्का पानी, देखिए इस तरह हाथ को डिप करिए पानी में और चारों तरफ इसके लगा दीजिए, जिससे कि ये सील बहुत अच्छे से हो जाता है। जब हम पानी लगा के इसको सील करते हैं तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। आप बिना पानी के भी इसको चिपका सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं है। तो देखिए इस तरह से इसके जो कॉर्नर हैं उनको हाथ से दबाते हुए हम सील कर लेंगे। देखिए कितने आराम से ये अच्छे से सेट हो गया चारों ओर से, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह हम चारों ओर से इसको पैक कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाएगा, पैक होकर बिल्कुल। तो इसी तरह हम दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो हमने बेल के रखा था, एक साइड से उठाकर थोड़ा सा मोड़ देंगे, देखिए इस तरह। इसी तरह उसके सामने दूसरी तरफ से भी मोड़ देंगे। इसी तरह ऊपर नीचे से भी हम मोड़ देंगे, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हमने इसका मोड़ दिया है, देखिए। अब इसको पलट लेंगे और किनारों को हल्का सा दबाते हुए पतले कर लेंगे। जो थोड़े मोटे हिस्से लग रहे हैं उनको दबा के थोड़ा पतला कर लेंगे। और इसमें रखेंगे चीज़, फिर फिलिंग, और फिर ऊपर से इसके चीज़ डाल देंगे। और कॉर्नर पे लगाएंगे हल्का सा पानी चारों तरफ इसके किनारों पे, इस तरह उंगली से। और इसको अच्छे से चिपका देंगे। देखिए कॉर्नर, दोनों तरफ से कॉर्नर उठा के आपस में चिपका देंगे इस तरह से।
और फिर दूसरी साइड के कॉर्नर्स को उठा के चिपका देंगे। देखिए एक पैकेट की तरह बन जाता है, बहुत ही एकदम यूनिक डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। देखिए, और इसके जो साइड का पोर्शन खुला हुआ है उसको इस तरह हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए, बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाता है। देखिए तो बनकर तैयार हो गया हमारा नाश्ता। इसी तरह हम बाकियों को भी बना लेंगे। बेल कर चारों किनारे इसके फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। देखिए इस तरह, और हाथ से दबाते हुए सेट कर लेंगे, और बीच में रखेंगे फिलिंग अच्छी तरह से, और पानी लगा के इसको हम चिपका देंगे। देखिए चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब दो कोनों को हिसाब पकड़ के हम चिपका देते हैं, फिर दूसरी साइड के दोनों कॉर्नर को पकड़ के चिपका देंगे, और किनारी जो है उसको दबाते हुए सील कर देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट से हमारा जो है ये पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं नाश्ते के। देखिए अब पैकेट तो बन गए, अब थोड़ा सा इसको और सजा लेते हैं। तो इसके बीच में मैंने थोड़ा सा लगाया पानी, हल्का सा हाथ पे लेके, और इसके ऊपर रख दिए थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, जिससे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से पानी लगा के जब हम काली मिर्च लगाते हैं तो अच्छे से वो चिपक जाती है और बिल्कुल भी हटती नहीं है। तो आप इसकी जगह तिल भी लगा सकते हैं या कलौंजी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, जिससे देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह सारे नाश्ते को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, सारा पैक कर लिया है। तो अब इसको हम सेक लेते हैं। अब कैसे सेकना है इसको, हल्का सा पानी लगाना है एक साइड और तवे पर से रख देना है। देखिए जैसे हम नान को रखते हैं तवे पे सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक साइड हल्का सा पानी का हाथ लगा के तवे पे रख देना है, और आप देखेंगे 1 मिनट में ये एकदम फूलने लगते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए, आप देख सकते हैं। और पानी लगाने की वजह से ये तवे पे बहुत अच्छी तरह चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी छूटते नहीं है। आप देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, एकदम गुब्बारे की तरह। तो इसको हम सिकने देंगे, 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से सिकने देते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। जब ये नीचे से थोड़े से कड़क हो जाएं तो इस तरह इसको तवे को हम उल्टा करके गैस पे से सेक लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से सेकना है। जहाँ से थोड़ा कच्चा दिखे आप धीरे धीरे पलट के इसको देख लीजिए, जहाँ से आपको कच्चा लगे उस हिस्से को गैस के ऊपर रख के आराम से इसको सेक लेंगे। देखिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। देखिए ऊपर से भी हमने इसको सेक लिया है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सिक जाता है, और दोनों ही तरफ से बहुत ही गोल्डन कलर आ जाता है, क्योंकि नीचे से तवे से सिक जाता है और ऊपर से हम इसे गैस की आग से सेक लेते हैं। तो जैसे नान बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ऊपर से हल्का सा मैं बटर लगा देती हूँ। तो देखिए सिक गए हमारे, हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएंगे बहुत ही आसानी से। आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये सिकाए दोनों ही तरफ से। तो इसी तरह हम सारे नाश्ते को सेक लेंगे। ऑयल लगाने से इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। आप चाहे तो बिल्कुल भी बटर ना लगाएं, बिना बटर के भी इसको बना सकते हैं। देखिए इसको नीचे से सेकने देंगे पहले हम एक तरफ से अच्छे से, थोड़ा सा घुमा घुमा के सेकना है हमें। जिस तरफ आपको कच्चा लग रहा हो उस तरफ थोड़ा सा तवे को घुमा दीजिए। मैंने बिल्कुल नॉर्मल आयरन का तवा लिया है, नॉन स्टिक तवा नहीं है ये। और नॉन स्टिक तवे पे ये बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उस पर चिपकेंगे नहीं। देखिए एक तरफ से सिक गए जब, तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। देखिए इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे देख लीजिए कहाँ से सिका है कहाँ से नहीं सिका है, और इस तरह गैस पे इसको सेक लेंगे। बहुत ही झटपट से बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता हमारा बन जाता है।
देखिए, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ नहीं सिका है उस पोर्शन को हम गैस के ऊपर करके सेक लेते हैं। धीरे धीरे से इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगता है। तो अब आप इसको बहुत ही कम गैस करके इसको सेकिएगा तो बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं और बहुत ही फूले फूले से हमारे ये नाश्ते जो बनकर तैयार होते हैं। तो बस आप इसको पलट के देख लीजिए कहाँ से सिका है कहाँ से नहीं सिका है। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इस तरह हमने बेकिंग सोडा डाला है जिसकी वजह से बहुत ही फ्लपी सा हमारा ये नाश्ता बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। दोनों ही तरफ से सिक जाते हैं। देखिए हल्का सा इसको प्रेस करके आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से किसी चमचे की मदद से। बहुत ही यूनिक और एकदम नए डिज़ाइन का नाश्ता बनकर तैयार होता है। देखिए आपको दिखा देती हूँ दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है। जो लोग ऑयल फ्री खाना चाहते हैं उनके लिए एकदम बेस्ट नाश्ता है। देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया है मेरे नाश्ते में। तो आप ज़रूर से इस नाश्ते को एक बार ट्राई करिएगा। देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना चीज़ी और सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप। और हेल्दी तो है ही क्योंकि है इसमें गेहूं का आटा और सब्जियां, दोनों ही हेल्दी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस नाश्ते को ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को बना के खिलाइए। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट विद मिनी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।